still central and state governments can legislate, but in case of conflict, central law prevails. As per Article 254, India 7th schedule as Union, State and Consent schedule में Union State and concurrent list. Next. The feature parliamentary government in the Indian Constitution has been taken from which among the following countries? The feature parliamentary government in the Indian parliamentary government का फंक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया. The feature of parliamentary government in the Indian constitution has been taken from the United Kingdom. Follow Westminster model को follow करता है. Next question चलते हैं. From which country is the principle of liberty borrowed in the Indian constitution? Principle of liberty कहाँ से borrow किया था? फ्रांस से borrow किया था. Principle of liberty in the Indian constitution borrowed from France. फ्रांस से लिया गया था. The ideals of liberty, equality, fraternity, which include preamble of the Indian Constitution, liberty, equality, and fraternity. तीन तरह के हैं ideals, liberty, equality, and fraternity. Inspired किससे था? फ्रेंच लॉ से inspired था. फंडामेंटल राइट 1922 के अंदर. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन. The provisions of single citizenship in the Constitution has been taken from which of the following countries? सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से लिया? यूनाइटेड किंगडम से लिया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम से लिया था हमने कैबिनेट फॉर्म. फ्रांस से हमने लिया आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. ऑस्ट्रेलिया से लिया कॉन्करेंट लिस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट. कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम यूनाइटेड गवर्नमेंट. वहाँ से लिया. साउथ अफ्रीका से हमने लिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर. Concept of directive principle of state policy in Indian Constitution was borrowed from Irish institution से लिया था. एक बार पीछे वाला वापस देखते हैं. अच्छा क्वेश्चन था. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम से लिया था. साउथ अफ्रीका से हमने लिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा. हमने कहाँ से लिया था? साउथ अफ्रीका से लिया था. फ्रांस से हमने लिया आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी विच इंक्लूड इन द प्रेम्बल. प्रेम्बल में इंक्लूड की गई है. ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रोवाइड किया कॉन्करेंट लिस्ट लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से और वहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग लिया. इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलोज द वेबमिनिस्टर मॉडल वेयर द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को. अंदर आया थोड़ा सा. The concept of directive principle of state policy in the Indian Constitution was borrowed from Irish Constitution से ली थी. The concept of directive principles of state policy (DPSP) in the Indian Constitution was borrowed from Irish Constitution, inspired by Ireland's social economic principles. DPSP guide the government in creating a welfare state through non-justiciable. They aim to ensure social justice. इसका हमारा आंसर हो जाएगा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट. The method of election as of the president in the Indian Constitution has borrowed from. कहाँ से लिया गया था मेथड ऑफ इलेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ये भी आयरलैंड से लिया गया था. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था. इसके अंदर थोड़ा डीप चलते हैं. मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था. नेक्स्ट. The concept of residual power in Indian Constitution is derived from the Constitution of which country?
साउथ अफ्रीका, जापान, यूएसए, कनाडा। The concept of residual power in the Indian Constitution is derived from the Constitution of Canada. In India, residual power not listed in union, state और concurrent list में residual power है ही नहीं, belongs to the union government as per Article 248. Concept of residual power कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। इसमें रीड कर लेते हैं। The concept of residual powers in the Indian Constitution is derived from the Constitution of India, Canada, sorry. In India, residual power subject not listed in the union, state और तीनों लिस्ट में नहीं है, belongs to the union government as per Article 248. This is similar to Canada where residual power rest federal government के साथ रहती है। कनाडा के अंदर भी ऐसी सिस्टम है। In contrast the USA residual power belong to state. USA में residual power state को belong करती है। This provision ensure strong central authority while maintaining federalism in India. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस बार ढंग से देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल पावर कहाँ से लिया था हमने? कनाडा से। इससे पहले था मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आयरलैंड से लिया था हमने। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया था? आयरलैंड से हम लोगों ने लिया था, पर एक हिंदी में कर लेते हैं। भारत ने आयरलैंड से राष्ट्रपति चुनाव के लिए एकल हस्तांतरण वोट एटीवी के माध्यम से, कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, इंग्लिश में आपने पढ़ा है। India adopted the system of proportional representation by means of single transferable vote (STV). This ensure a balanced representation of both parliament and state legislature in election process. This ensure a balanced representation of both parliament and state legislature in election. ठीक है। Other influence on India political system include Britain ceremonial head role, USA से indirect election, Canada से हुआ federal structure। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसेप्ट ऑफ रेजिडुअल पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया था? किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था? इसका हमारा आंसर हमने पहले कर लिया था, कनाडा। हमारा गलत हो गया था पहले। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ हैविंग प्रोविजंस फॉर बाइकैमरलिज्म पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। द आइडिया ऑफ having provision for bicameral parliament in the Constitution of India was borrowed from the Constitution। ब्रिटिश से लिया था bicameralism। ब्रिटिश से हमने क्या कर लिया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, bicameralism। आइडिया ऑफ हैविंग ए प्रोविजन फॉर बाइकैमरल पार्लियामेंट, ब्रिटिश से लिया हमने क्या किया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया, रूल ऑफ लॉ लिया, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया, सिंगल सिटीजनशिप ली, कैबिनेट सिस्टम लिया, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म। नेक्स्ट, which of the following features of Indian Constitution is not borrowed from the British Constitution? हमने क्या नहीं लिया? पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर लिया, स्पीकर ने लोकसभा लिया, बाइकैमरल लिया। कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। अदर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया? प्रीएम्बल, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज होगी ना, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। प्रीएम्बल हमने अमेरिका से लिया, लेकिन जो लैंग्वेज है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स। अदर फीचर्स borrowed from the British cabinet system of minister, parliamentary type of government लिया हमने, lower house and more powerful, council of minister responsible to lower house। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बोरोड ब्रिटिश। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? हमने बाइकैमरल लिया है, स्पीकर इन लोकसभा लिया है, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर लिया है, लेकिन हमने कॉन्करेंट लिस्ट नहीं लिया। हमने कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया है? हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो इसका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा नहीं लिया गया है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिया, जुडिशियल रिव्यू लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से ली है।
रिमूवल ऑफ जजेस एंड प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट में अमेरिका से लिया। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने लिया ब्रिटिश से, इसका राइट आंसर है द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ inspired by British Constitution. It embodies a fundamental principle of rule of law, equality before law, that no one above law and everyone is treated equality in legal. Article 14, equality before law and equal protection of law. ठीक है, कैनेडियन से लिया हमने फेडरल स्ट्रक्चर और रेजिडुअरी पावर्स। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर डीपीएसपी, आयरलैंड से लिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट प्रोसेस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ में ब्रिटेन से लिया है। ठीक, आगे चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू यूनाइटेड स्टेट्स से लिया हमने। विच कंट्री रिपब्लिक फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रेम्बल इंडियन बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका से लिया है प्रेम्बल। ये हमारा पूरा होता है, बैक चलते हैं, दूसरा लगाते हैं। प्रैक्टिस बैच था हमारा, कहाँ गया। स्टार्ट कब से हो जाएगा। हम लगाते हैं यहाँ से ही। जीके का हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लगा रहे हैं, पॉलिटी। स्टार्ट करते हैं हम आज का मॉक पॉलिटी का। विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में किस कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का है ऑफ कोर्स, इसका राइट आंसर होगा इंडिया। आगे चलते हैं। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये टेस्ट रैंकिंग पे दे रहे हैं हम टेस्ट, आप मेंटेन रखेंगे, लाइक और शेयर करें। ऑफिशियल लैंग्वेजेस काम किस में थी, 11th में थी, 4th में थी, 12th में थी, आई थिंक 8th में थी। ठीक है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज रिटन बाय, किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उन्होंने लिखा था। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ट्रू। गुड इवनिंग सिया कुमारी। हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ट्रू। फंडामेंटल राइट सेट सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वाइल डायरेक्टिव स्टेट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसका आंसर कीजिए। सेकंड ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स आर मोरल एंड पॉलिटिकल सेक्शंस। फंडामेंटल राइट्स मोरल और पॉलिटिकल है। जस्टिसिएबल है, वेरी डायरेक्टिव। थर्ड ऑप्शन राइट है। ये फंडामेंटल राइट्स है ना वाद योग है और डीपीएसपी वाद योग नहीं है। सही, थर्ड के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी फीचर कौन सा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो रिटर्न है, डीडीटी है, सिंगल सिटीजनशिप है। इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है, एक बार अगर इसको छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज जस्टिस इन द प्रेम्बल रेफर्स टू। जस्टिस का मतलब क्या है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्या अब विजिबल है क्वेश्चंस। व्हाट डज जस्टिस इन द प्रेम्बल रेफर्स टू। जस्टिस तीन प्रकार के दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो बस इसके हम फर्स्ट के साथ जाएंगे, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज
ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं पीपीटी से शुरुआत करूंगा। अभी तो मैं लाइव अटेम्प्ट कर रहा हूँ, लिए नेक्स्ट टाइम से हम जरूर पीपीटी से करेंगे, लेकिन अभी हमारा टाइम चल रहा है, तो अभी इसको अटेम्प्ट कंटिन्यू करते हैं, फिर देखते हैं कल से पीपीटी बना के। विच लैंग्वेज वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस में लिखा गया था स्टार्टिंग में? संस्कृत तो होगा नहीं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो सबसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो सबको आता है, बी आर अम्बेडकर। हाउ मेनी मेंबर्स साइंस, कितने लोगों ने साइन किया था ड्राफ्ट ऑफ द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन? 284। 284 279 में डाउट है, 284 ने किया था आई थिंक। इसके साथ चलते हैं, क्रॉस चेक कर लेंगे। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इट डिड टेक टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने साल लगे थे? 2 साल 11 महीने और 18 डेज लगे थे। 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनकर तैयार होने में। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? केम इनटू फोर्स, लागू कब किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? किया गया था 26 जनवरी 1950 में किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रीवियस, किसी का रह गया हो, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? ये हाँ, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया? ये तो बिल्कुल ये सभी को आता है आई थिंक, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीएम्बल है क्या? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, सेपरेट लीगल डॉक्यूमेंट? इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कौन, प्रीएम्बल। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का संविधान क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट, एक रिलीजियस टेक्स्ट तो हो नहीं सकता, हिस्टोरिकल नॉवल भी नहीं है, फाइनेंशियल पॉलिसी भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लीगल डॉक्यूमेंट। अभी चेक कर लेंगे, सबमिट करेंगे। द टर्म रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल मीन्स, रिपब्लिक का मतलब क्या है? गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द फोर, फर्स्ट ऑप्शन है हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, सेकंड ऑप्शन है कंट्री इज रूल्ड बाय किंग, मोनार्क थोड़ी है, और सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। जुडिशरी सुप्रीम, ये भी गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय फॉरेन ना, हेड ऑफ स्टेट क्या होगा, इलेक्टेड होगा, इसलिए को रिपब्लिक कहते हैं। व्हाट डज सोवर्जियन इन द प्रीएम्बल मीन? सोवर्जियन का मतलब क्या होता है? द कंट्री इज रूल्ड बाय किंग, इंडिया इज फ्री टू मेक इट्स ओन लॉज, इंडिया इज अंडर ब्रिटिश रूल, ये तो गलत हो गया। सोवर्जियन, इसमें डाउट है भाई थोड़ा। ऊपर जो रह गए हैं, सोवर्जियन पार्लियामेंट हैज पावर, ओनली पार्लियामेंट के पास पावर होती है, तो इसका आंसर ये होगा, इंडिया इज फ्री टू मेक इट्स ओन लॉज। डाउट है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा जो रह गया था, यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी फीचर कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? और एक हमारा रह गया था, सेवंथ क्वेश्चन भी रह गया था, लैंग्वेज किस में लिखा गया था इसको? हिंदी में लिखा गया होगा ऑब्वियसली। और था, सोवर्जियन का मतलब है इंडिया इज फ्री टू मेक इट्स ओन लॉज, सोवर्जियन कंट्री, ओनली पार्लियामेंट हैज पावर। एनीवन, किसी को आता है इसका? 15th क्वेश्चन। 15, सोवर्जियन इन द प्रेम्बल मीन्स का मतलब क्या? हिंदी में कर देता हूँ एक बार, 1 मिनट बचा है। प्रस्तावना में संप्रभु क्या है? एक बार देख लीजिए। देश पर एक राजा, भारत अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, केवल संसद के पास ही शक्ति है। एनीवन, सबमिट कर दें। एक ये भारतीय संविधान की एकात्म यूनिटरी, यूनिटरी में हो जाएगी एक नागरिकता। चलो सबमिट करते हैं और चेक करते हैं हमारा कितना सही हुआ।
सबमिट किया जा रहा है। हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन गलत हुआ है भाई, हमने 14 अटेम्प्ट किए थे। चलते हैं हम सॉल्यूशन में चलते हैं, चलो उसका एक बार सॉल्यूशन जरूर देख के जाइएगा बीच में छोड़ के। तो हमारा एक क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा 7th वाला। इसका आंसर है हिंदी, ओनली हिंदी में लिखा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑन द विच लैंग्वेज वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिया कुमारी जी, ये टेस्ट रैंकिंग पे गगन प्रताप सर के द्वारा है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ टेस्ट रैंकिंग, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे माउस को कोने में कर्सर आ रहा है ना टेस्ट रैंकिंग का, यहाँ से देखिए। यहाँ पे देखो ऊपर कोने में आ रहा होगा टेस्ट रैंकिंग है 49। विच लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी में लिखा गया था, ध्यान रखना, और एक क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया था। इसका आंसर है सॉवर्जियन इन द प्रीएम्बल मीन इंडिया इज फ्री टू मेक इट्स ओन लॉज। ओनली 49 रुपीज़ में आप इसको परचेज कर सकते हैं बिल्कुल। अब आप डेली मॉक लगाइए, जीएस मतलब ये दिल्ली पुलिस का है। अब किसी भी सब दूसरा लेना है आपको, मतलब ये सीजीएल वगैरह के लिए, वो 99 रुपीज़ का है। तो हमारा एक क्वेश्चन तो गलत कौन सा हुआ था, 7th वाला हुआ था कि भाई किस लैंग्वेज में ओरिजिनल में हिंदी में लिखा गया था, फिर आई थिंक उसको बाद में ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। फिर उसको पढ़ लेते हैं आगे डीप नॉलेज के लिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओरिजिनल रिटन इंग्लिश और हिंदी में लिखा गया था। अच्छा अच्छा, हमने गलत कर दिया था मतलब गलत चूज कर दिया था इसका आंसर। सही था इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, हो गया ठीक है, थैंक यू। अब दूसरा लगाते हैं, अब हम किसका लगाएंगे मॉक, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ये हमारा प्रैक्टिस बैच है।